Today, I want to talk about my issue with some of the feminists out here. फेमिनिस्ट से सिर्फ मेरा मतलब औरत नहीं है, कई सारे आदमी भी हैं जो कहते तो हैं दे आर फेमिनिस्ट बट दे आर farthest thing from it. Okay, let's talk about it. जो शुरुआत हुई थी फेमिनिस्ट मूवमेंट की, दैट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड. औरतों पे इतने जो जुल्म हो रहे थे, बिल्कुल भी बराबरी नहीं थी. जो ज़्यादतियाँ सब हो रही थी उन सबको सॉर्ट होना था, राइट. उन सब के लिए जस्टिस मिलनी ज़रूरी थी. औरतों को आज़ादी की ज़रूरत थी और इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हुई है पिछले कितने समय में जो ये बदलाव अर्थ देख रही है, राइट. सो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस मूवमेंट की शुरुआत हुई. शुरुआत बहुत ही अच्छी जगह से हुई थी, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हुई थी. बट जैसे कि किसी भी चीज़ के लिए आप कह सकते हैं कि अति हर चीज़ की बुरी हो जाती है. अब शुरुआत हुई थी कि राइट्स को इक्वल करना है, राइट. अब धीरे धीरे आप इसमें देख रहे होंगे देर आर राइजिंग दोज काइंड ऑफ पीपल विच थिंक कि औरत कुछ गलत कर ही नहीं सकती है. औरत जो भी फकअप कर रही है वो ज़रूर किसी आदमी की वजह से है. So zero accountability for females. There are women like that. So when I take a lot of clarity calls and counseling calls with these women, so they, on one hand they will be telling me how these men are the worst, they are the dogs, they are this, they are that. And I remember this एक नहीं, actually multiple clients like that. They got mad at me and they left. And because I showed them the mirror just the same way I show it to everyone. I'm here to show the truth to everyone. That's what I do as a healer, right? That's a job of a healer, right? So there was this woman, okay, she was telling कि दुनिया भर के आदमी कितने खराब होते हैं, मेरे पापा बड़े खराब थे, ये थे वो थे, सब बताने के बाद, and then she tells me she is two timing with men. And you remember I told you, right, dating two people is a totally different thing, and having sex with two people at the same time is another thing, right? And telling one party that नहीं मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ, हम फ्यूचर देख सकते हैं, then the other party को कुछ झूठ उसको भी बोलना. ये फीलिंग्स के साथ खेलना है. फीलिंग्स के साथ आप चाहें मर्द है, औरत है, लेस्बियन है, गे है, आप गलत ही काम कर रहे हैं अगर आप किसी की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं. दैट इज मोरली रॉन्ग, राइट. सो ये पर्सन जो है, शी वॉज चीटिंग, ओके. एंड when I called her out, I'm like, you were telling me that your father is such a bad person for abandoning your mother and going out there flirting with other women. I think you are the worst, right? He was just flirting, you are out here like mingling with all those men. एंड दूसरों को सबको आप झूठे सपने क्यों दिखा रहे हो? अगर इफ़ यू हैव द बॉल्स जिन जस्ट से इट, राइट, कि यार देख, आई डोंट थिंक आई एम ready for any kind of commitment and I just want to have sex. I think more than men will be okay with that. They'll be like, yeah, cool, no problem, even I wanted to just have sex. So you just have it, consensual sex, two people, sure. You want to do that kind of casual stuff, go do that. But then at the same time you're playing with people's feelings, and then you want me to somehow take your side. Why? Because you're a woman. So ये नहीं चलेगा यहाँ पे. And when I called her out, क्योंकि तुम तो पापा से भी अपने वर्स्ट हो यार, ये क्या कर रहे हो तुम, राइट? यू डोंट यू थिंक कि you're playing with their feelings? क्या असर पड़ रहा होगा उन लोगों को जो तुम ये कर रही हो? Then she started telling like कि oh, I really thought you were an ally of women, you don't know the trauma that I've gone through. Listen, your trauma is a explanation, it is never the justification. आपका ट्रॉमा ये एक्सप्लेन कर सकता है कि आज आप फक्ड अप चीज़ें क्यों कर रहे हो, बट वो फक्ड अप चीज़ों को करना सही नहीं बन जाएगा जस्ट बिकॉज यू हैव ट्रॉमा. Some rapist will rape some people and will be like, oh, I have trauma. Oh, judge will be like, all right, that then it's settled. Cut it. No, इसको कोई सजा देने की जरूरत. He has trauma, no? Who doesn't have trauma? Right? Who doesn't have trauma? सबके पास दिक्कत है, सबके पास अपनी प्रॉब्लम्स है. तो हम जाके शूट करने लग जाए, रेप करने लग जाए, सबको कुछ भी करने लग जाए, बाहर जाके धक्का दे दे किसी को भी कहीं से भी, नहीं ना. आप अपने फक्ड अप बिहेवियर का जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हो अपने ट्रॉमा में, देन वी डोंट रियली डिजर्व हीलिंग. वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टू इवन डिजर्व हीलिंग. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट काउंसलिंग प्रोसेस इज जस्ट लाइक काउंसलर्स का डोर सबके लिए खुला हुआ है. नो, नॉट रियली. उस तक पहुंचने के लिए भी बहुत ह्यूमिलिटी चाहिए होती है. कई लोग में वही नहीं होती. दे हैव टू
डू दैट मच ऑफ सेल्फ वर्क खुद से, कोई हेल्प नहीं करने वाला है इसमें, क्योंकि आपको मैं ABCD तो नहीं सिखा सकती ना, तो बहुत ही बेसिक है, राइट। सो आपके दिल के साथ कोई खेले तो वो बहुत बुरा है, आप 4 लोग के दिल के साथ खेलो, आप औरत हो, आपको ट्रॉमा है, तो ये दिक्कत आपकी नहीं है, ये मर्दों ने किया है। अच्छा, ये बहुत ही बड़ा कन्वीनियंट था ये तो। राइट। सो क्योंकि जब से मैंने मेल क्लाइंट्स लेने शुरू किए हैं, मेरा माइंडसेट बहुत ज़्यादा खुला है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गेव दैट चांस। इवन शुरुआत में इवन आई वॉज दैट वुमेन हु यूज्ड टू थिंक कि औरतों की सारी दुख की मतलब रीज़न सिर्फ और सिर्फ आदमी है, औरत कभी अपने खुद का दुख का रीज़न नहीं है। एंड आई कुड नॉट हैव बीन wronger than that. I don't know, wronger is not really a word, but yeah, I just said it. I couldn't have been more wrong. Okay, yeah, that's the thing, right? क्योंकि मैंने देखा है कितनी तरीकों से औरतें अपनी दुखों की खुद ही क्या कह सकते हैं, सारथी हैं, खुद ही लेके जा रही हैं खुद को एक दुख भरे टाइम में, और मैं वो औरत रह चुकी हूँ। पर अब मैं खुद से झूठ नहीं बोलती हूँ, ना मैं अपने क्लाइंट से झूठ बोलती हूँ, ना झूठ बोलने वालों की मेरे पास कोई जगह है। They can go anywhere but not here. So ये एक क्लाइंट की कहानी। There was this another client, okay, so many stories I have. मैं थोड़ा सा ही शेयर करके आपको बताना चाहती हूँ कि फेमिनिस्ट होना ये नहीं है कि औरत जो भी फकअप कर रही है उस पर बैंडेड लगा दो, उस पर बोल दो कि हाँ तेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरे ये आदमी लोगों ने हमारे से इतना बुरा किया है, 1-2 पे चीट तो तू भी कर, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या मतलब है भाई? उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, दैट गिव्स यू राइट टू डू ऑल दिस थिंग्स, नास्टी थिंग्स टू अदर पीपल। आई गेट इट, यू आर कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस एंड ऑल, बट डोंट एक्सपेक्ट मी टू से दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग और समथिंग। Yeah, you fucked up, things happen to you, you're doing fuck ups, okay, but that's all it is. It is a fuck up only. It's not something right that you're doing, and I'm not going to be like, oh yeah आदमियों का fault है कि तुम आज cheat कर रही हो। It's your choice. कोई पकड़ के तुमको गोली रख के तुम्हारे सर पे cheat नहीं करवा रहा है। Okay, so that is there. Second, there was this woman, another client of mine. Okay, she used to love the posts when I used to call out on men. When I used to call out on mama's boy, the men which have this enmeshed relationship with their mothers because of the father's absence, it's got developed in the home, and when they become thirsty for women, and they get women and they hate women at the same time, because जो dynamic रहा है मम्मी के साथ उनका, उसकी वजह से वो 2 लोग की ज़िंदगी नरक बना देते हैं, राइट। और इनसे दूर रहने के लिए मैं औरतों को बोलती हूँ। So she was enjoying really those kind of posts, like yeah, she called like mama's boy is stay on alert, like she's coming for you and things like that. I was like, yeah, thank you for the support, nice. उस टाइम तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। I was like, she's just supportive. And then the things flipped the moment the second time the post was on women. The post was on in what ways women are doing a lot of wrong things. I talked about like how women are being so much male centered, romance centered in their life. इसी की वजह से ज़िंदगी अपनी खुद ही वो नर्क बना रही हैं। पूरा टाइम ध्यान इसी पे रहता है, वो घोड़े पे आने वाला या गधे पे आने वाला वो बंदा कब आएगा, मेरे को लवर कब मिलेगा, मेरा हस्बैंड कब है, मेरा शादी कब है, राइट। जैसे कि और कुछ है ही नहीं इनकी ज़िंदगी में। और यही शादी फिर इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी बनती है, एंड राइटली सो, बिकॉज यूनिवर्स विल टीच यू कि भाई आपने इतना अनहेल्दीली ऑब्सेस किया जिस चीज़ पे, वो कोई फ्लरिश थोड़ी ना करने वाली थी। आप बैलेंस एनर्जी के साथ नहीं गए, आप रिलैक्स के साथ नहीं गए, तो वो ऐसे ही कुछ बन के आएगी आगे भी, राइट। सो दैट इज़ देयर। तो जब मैंने औरतों पे डिग लेना शुरू किया, ओहो दिस वुमन, यू शुड सी दैट, ओ अंकिता, आई रियली थॉट यू आर अ फेमिनिस्ट, ओ औरतें इतना सब करती है, कोई ये नहीं पूछता औरत ऐसी बनी कैसे। एंड आई रियली वांटेड टू आस्क दैट वुमन कि जब मैं मामाज बॉय के लिए लिख रही थी तब तो तुमने कभी भी नहीं ऐसा कहा कि सब मामाज बॉय पे बिल फाड़ रहे हैं, कोई ये नहीं जानना चाहता मामाज बॉय बना कैसे, राइट। क्योंकि मैं तो बराबरी से दोनों के बारे में बात करती हूँ कि मामाज बॉय क्यों बना। मेरा पिछला भी जो वीडियो था कि एक जो मदर इन लॉ जिसको इतना बुरा बताया जाता है वो वहाँ तक पहुँची भी कैसे। आई इवन सी दैट इन कंपैशन, in the light of compassion, because everybody deserves it. I get it. There is explanation for everything out here, but doesn't mean that is the justification.
राइट. सो आज के टाइम पे औरत रिलेशनशिप सेंटर्ड है, ये जो भी चल रही है, अपनी अपनी पावर को हाथ में नहीं लिया है. आई एम गोना कॉल दोज आउट ऑल्सो, बिकॉज वो अपनी तबाही के रास्ते पे है. जैसे बामास बॉय अपनी तबाही के रास्ते पे है, ये अपनी तबाही के रास्ते पे है. दोनों लोग गलत ही कर रही हैं. Right. So that woman got really, angry and all, and she was like, no, 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 I'm just discontinuing everything with you. I was like, I'm more than happy, please leave. And yeah, and she left. So, so this is what, just 1 minute. Okay. So yeah, this is what, like, I see. जो शुरुआत हुई थी फेमिनिस्ट मूवमेंट की was about the equal rights, पर वो करते करते अब ऐसे आ गए कि अब हम आदमियों पे अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं, हम उन्हें ऑप्रेस करना चाहते हैं वापस से. आई गेट इट कि इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बिकॉज इतना रेज है, राइट. बट वी कैनॉट रियली से दैट दैट्स द राइट थिंग टू डू. दैट वी कैनॉट रियली से दैट कि औरतों का हर जगह, चाहे वो जितना फकअप भी काम कर रही हो, फीमेल की एलाई होने का मतलब ये नहीं है कि औरतों का गलत में साथ दो. एलाई होने का मतलब ये है कि जहाँ वो औरत भटक जाए उसको आपको रास्ता दिखाना होगा. दैट इज अ गुड फ्रेंड. गुड फ्रेंड अलॉट ऑफ टाइम, लाइक यहाँ पे मैं मीम्स वगैरह देखती हूँ इंस्टाग्राम पे कि बेस्टी मेरी, चाहे मैं क्राइम भी कर दूँ वो मेरा साथ देगी. वो आपकी बेस्टी नहीं है. जो आप क्राइम कर रहे हो और वो आपका साथ दे रही है, या आप कुछ गलत बोल रहे हो आपका साथ दे रही है, राइट. वो पर्सन आपका पर्सपेक्टिव समझती है, एंड मे बी शी इज सो अफ्रेड टू बी अलोन. So she just says yes in whatever you do. That's miserable existence, to be honest. Bestie is someone who can show you the mirror. जब भी आप गाइडेंस, जब भी आप जो है, पहली बात तो ऐसी औरत जिसका रिलेशनशिप गॉड के साथ हो. व्हेन आई से गॉड, आई मीन अपने से कनेक्शन हो, सेल्फ के साथ कनेक्शन हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन हो, जो सही गलत में डिफ्रेंशिएट कर पाए कि यहाँ पे क्या करना हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा है, क्या नहीं है. और आप ऐसे जब फक्ड अप एक्शंस लो तो वो आपको पकड़ के शी कैन होल्ड योर हैंड एंड टेल यू कि बच्चा आप यहाँ पे गलत कर रहे हो. आप एक्सपेक्ट मत करना कि इसमें मैं आपका साथ दूंगी, इसमें भी मैं आगे आपके साथ जाऊंगी. ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, और ये तुम्हें भी पता है, तुम्हारे दिल को भी पता है कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो. सो कम बैक टू इट, अदरवाइज आई वुड हैव टू गो, बिकॉज मैं इसमें तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ. दैट इज योर बेस्ट फ्रेंड. दैट इज अ गुड फ्रेंड. नॉट अ फ्रेंड कि तुम कुछ भी कर रहे हो फकअप और शी इज जस्ट स्टैंडिंग देयर, बिल्कुल सही चीज कर रहे हो, वो तुम्हारे जितनी बेवकूफ वो भी है, ये चट्टे बट्टे हैं सब एक ही थाली के, है ना. सो दैट्स द थिंग. सो शुरुआत हुई थी इतना सब ब्यूटीफुल चीज़ों से कि जस्टिस के लिए वगैरह, पर अब फक्ड अप चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए आप फेमिनिज्म का यूज़ कर रहे हो, तो वो ठीक नहीं है. दैट्स माई इशू विद दोज फेमिनिस्ट. अनदर थिंग that is my biggest issue with feminist is a lot of feminists that you will see, this is very peculiar pattern. Try to notice, जो बहुत ही ज़्यादा फेमिनिस्ट करते हैं वो लोग फेमिनिन एनर्जी के ही टच में नहीं है. सबसे बड़ा मजाक यही है, सबसे बड़ी आयरनी ही यही है. जो औरतें सबसे ज़्यादा फेमिनिज्म मूवमेंट करती रहती हैं वो फेमिनिन के ही टच में नहीं है. अब आप मुझे ये बात बताएं, जो औरत औरत्व के यानी फेमिनिटी के टच में नहीं है, क्या वो बेस्ट इंसान है औरतों के राइट के लिए खड़े होने वाली? तभी तो फेमिनिस्ट मूवमेंट की जो एम्पावर्ड वुमेन की जो इमेज है, वो इमेज एक मर्द है, वो इमेज औरत नहीं है. Isn't it? Right? फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या बोल रहा है अब, मतलब शुरुआत जो अच्छी जगह से हुई थी, पर आज जो वो कूड़ा करकट बन गया है, वो क्या बोल रहा है आज के टाइम पे, राइट? कि किसी आदमी पे भरोसा मत करो, ये सारे के सारे कुत्ते हैं, ये कभी भी चीट कर सकते हैं, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, आदमी पे रिलाई मत करो. ये वुंडेड वुमेन है जो खुद की फेमिनिटी से दूर है और तुमको भी करेंगी. किसी भी आदमी भरोसा नहीं कर सकते हैं, खुद का बिल पे करो, खुद का अकाउंट रखो, खुद का ये करो. पागल हुई जा रही है ये. आदमियों जैसे कपड़े पहनो, आदमी अगर पैंट पहन सकता है, हम क्यों पैंट नहीं पहन सकते, हम भी ब्लेजर पहनेंगे. अरे भाई, तुम्हें आदमी इतना बैडली बनना है तो बन जाओ ना. आजकल तो सेक्स चेंज करने के लिए भी सर्जरीज हैं. फेमिनिस्ट मूवमेंट वाज नेवर अबाउट बिकमिंग अ मैन. इट वाज अबाउट हैविंग इक्वल राइट्स एज अ मैन बाय बीइंग अ वुमेन ओनली.
किसी भी औरत का सपना मर्द बनना नहीं है, और जिस औरत का सपना मर्द बनना है, शी हैज बीन डीपली रिजेक्टेड एज अ वुमन इन चाइल्डहुड. शी हैज अ लॉट ऑफ ट्रॉमा. दैट्स व्हाई शी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हर फेमिनिटी. शी कैन नॉट बी अ फेमिनिस्ट. शी इज नॉट फिट. फेमिनिस्ट के लिए फेमिनिन में तो हो, पहले पहले आपको पता तो हो कि भाई फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन चाहती क्या है. हम आदमियों के जैसे पेड़ पे चढ़ सकते हैं, हम भी आदमियों के जैसे कारपेंटरी कर सकते हैं, हम भी टैक्सी चला सकते हैं, हम भी ऑटो चला सकते हैं. चलानी किसको है पर? आप एक फेमिनिन औरत से पूछो, आपका सपना है मैडम ऑटो रिक्शा चलाना? है क्या? आपको भी गटर साफ करना है आदमियों जैसे? आपको भी ईंटें ढोनी है क्या? बताओ, अगर अगर ढोनी है तो बताओ. हम दिला देंगे आपको राइट. मजाक बन गया है भाई सच में. दैट इज नॉट फेमिनिज्म. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. तो फेमिनिज्म के नाम पे जो ये मूवमेंट अब चला रहे हैं आगे, a lot of those are not even in touch with what does it even mean to be a woman. Being a woman doesn't mean breast and vagina. आप बस पैदा हो जाओ woman की body में, so you're a woman. That's exactly I keep telling all the damn time. There's a journey from being a female to feminine, because that involves emotional work, inner work. उसको अवॉइड करके फ्रॉम द प्लेस ऑफ योर ट्रॉमा यू थिंकिंग यू गोना एजुकेट एवरीवन एंड दैट्स व्हाट यू गोना कॉल फेमिनिज्म. सॉरी, इट्स नॉट हैपनिंग. या अ लॉट ऑफ दोस वुमेन विल से तुम इक्वल राइट्स है, अपना बिल खुद पे करो, साला किसी आदमी का पैसा लेने की जरूरत नहीं है. A lot of time what's happening is not really this that they are really independent, that's why they are paying. They are paying because they are surrounded with unreliable men. Because of their wounded side, they keep choosing unreliable men. These are the same women which are getting into 50-50 pathetic relationships. And they think that's empowering. That's just like not even knowing a bit of your power, because you're not even in touch with the beauty of being a woman. You don't even see कि मनी के अलावा कोई चीज़ रिलेशनशिप में वैल्यू ला सकती है, बिकॉज आपको फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू ही नहीं पता है, क्योंकि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं पता है, क्योंकि आप खुद ही टच में नहीं हो. आपको पता भी कैसे होगा? आप दुनिया को आदमियों के जैसे देखने लग गए हो. They don't understand. They think they are really propagating feminism, but they are only thing that they are propagating is patriarchy. Because what exactly is the root belief of patriarchy? आदमी औरत से बेहतर है, right? And they so badly want all औरत to become आदमी. I have no interest in being any आदमी. My most powerful self is being a woman that I am, what God made me. And I'm more powerful than 10 men out there as a woman. That I know. Wind is doing its job, right at that time when I'm dropping this sentence. Okay. Yeah, so a lot of time what's happening, they are surrounded with unreliable men. Why they are surrounded with unreliable men? They haven't awakened their femininity. They haven't worked on it. They don't have high standards. They'll just be like, yeah, equal तुम चाहते हो ना, मैं equal बिल दूँ, मैं equal ये दूँ, मैं equal सब दूँ, equal आधा बर्तन तुम धो, आधा मैं धोऊंगी, राइट? इनका घर ऐसा दिखता है, राइट? एंड देन दे वंडर हमारी सेक्स लाइफ क्यों नहीं वर्कआउट करती, क्योंकि वहाँ तुम्हें कोई इक्वल नहीं चाहिए, वहाँ तुम्हें पूरा मर्द चाहिए, 100% मर्द चाहिए. 50 वाला नहीं चलेगा, 50 इज वेरी लेस, क्योंकि घर की आधी मर्द तो तुम भी हो. मुश्किल है ना. हस्बैंड को भी नहीं आएगा तुम में इंटरेस्ट, तुम आधी मर्द हो. आधा मर्द आधा औरत वो है, तुम्हें नहीं आएगा इंटरेस्ट. 50-50 couples don't talk about how fucked up their sex life is. I know, right? I take sessions. Right? पूरी औरत पूरा मर्द ही चलेगा. It's never 50-50. It's always 100-100. 100% feminine, 100% masculine चाहिए बस. That's the thing. That's bare minimum. That's how it works. So a lot of time they'll be saying कि I'm paying the bill because I am such an independent woman. Not really. You're paying the bill because you cannot receive. You don't have men around you. You usually grew up with a father which didn't treated you like the daddy's little princess you should be, right? And your brothers didn't provide for you. Men have given you bad experiences only in life. They made you feel like you were a burden. So you have started carrying your burden, and that is sad only.
इतने पथेटिक आदमी थे, इनको छोड़ के आप हीलिंग की तरफ बढ़ सकते थे, बट वॉट यू चोज, यूर लाइक कि हाँ ठीक है, रहना इन्हीं के साथ है, 50% बिल और दे देंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लोग ही हैं जिनके साथ तुम रह रहे हो, ऊपर से 50% बिल दे के रह रहे हो। काट। ओके, सो like they will be नॉट पेइंग बिकॉज लाइक आप तब बोल सकते हो कि आप इंडिपेंडेंट हो जब 4 लोग आपका बिल पे करना चाह रहे हैं कि अरे मैं करूंगा यार, मैं दूंगा पैसे, तू तू रख, तू बैठ यार, तू आराम कर, राइट। जब वो कह रहे हो और आप उन सबको मना करो कि नहीं प्लीज प्लीज आई वॉन्ट टू डू दिस फॉर माई सेल्फ, एंड देन यू डू इट, दैट इज वेन यू कैन टेल मी इवन दैट यू आर इंडिपेंडेंट, you pay your bills, not when nobody even offers when the bill comes. Your man is just sitting there, he expects you to take care of it, or he expects you to send him on whatever that splitwise and stuff. That kind of loser you're sitting with, what can I say? Your choice. What a choice. So इस तरीके के आदमियों के साथ you're telling me you're really independent. You're not independent. Actually, that is sad that nobody even offers to give you anything. एंड बिगर क्वेश्चन इज नॉट दिस कि तुम इंडिपेंडेंट हो, क्या तुम बिल पे कर सकती हो? कौन औरत बिल पे नहीं कर सकती है? आज के टाइम पे एवरीबडी हैज देयर करियर सॉर्टेड, एवरीबडी इज अर्निंग, एवरीबडी हैज, ऑफ कोर्स वी ऑल कैन. We don't want to end up with men which expect us to take care of ourselves financially also while we take care of the relationship emotionally also. क्योंकि ये वो आदमी है जिनको औरत का मीनिंग नहीं पता. इनके साथ वही औरत जाती है जिनको खुद भी औरत होने का मीनिंग नहीं पता. Exactly as my point earlier. Not connected with their feminine. So that is my issue with the feminist, a lot of feminists. Feminism के साथ मेरा कोई इशू नहीं है, वो मूवमेंट अपने आप में बहुत अच्छा है, बट कई सारे लोग उसे जो पल्यूट कर रहे हैं, ये तो बात हुई लड़कियों की, कई सारे लड़के भी उसे पल्यूट कर रहे हैं. दे विल बी लाइक, आई थिंक ये भी वही सब है, सबसे ज़्यादा जो हल्ला मचा रहे होंगे इन द नेम ऑफ फेमिनिज्म, राइट. And then they will be like leaving their daughters and mothers and wives with the big heavy bags. They're like, feminism आ गया है, आधा बैग उठाओ तुम. Same men जो अपनी बच्चियों को छोड़ देंगे, जाओ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लो या जाओ जाके खुद गाड़ी चला के जाओ, इनको कोई फर्क नहीं है इनकी बेटी बीवी बच्चों का क्या होगा. नामर्द है ये, और नाम देंगे उसको, नामर्द तो नहीं कह सकते ना खुद को, क्या कहें, हम फेमिनिस्ट हैं. उसके नाम पे हमें 50% कम काम करना पड़ता है, तो जयराम जी की बहुत ही बढ़िया, यही सही है. हमें बिल नहीं पे करना पड़ता, आधा ही करना पड़ता है. लड़कियों की एक्सेस वो भी आधे में, फ्लैट 50% ऑफ. ये आधे मर्दानगी वाले लोग हैं, ये फेमिनिस्ट. रियल फेमिनिस्ट, इवन अ मैन first of all values a woman, and because he values the woman so much, he will never let her have any less rights than him. हर जगह उसकी choice, उसका opinion वो value करेगा, और मर्द वाले सारे काम करेगा, right? और औरत वाले काम उसे जैसे करने हैं वैसे करने देगा, जितना जैसा वो करना चाहती है, because he loves her, that's why she's here. She's not here for anything else. He wanted her, that's why she's here, right? So he wanted her. Her is more important. What she does is not important. That's why we say, man who asks what do you bring to the table is not a man for anyone. He should not even be in dating. He's like कि भाई तुझे अगर यही नहीं पता है कि what do I bring to the table, तो मेरे को बाहर क्यों लेके आया है? And get up and leave. That's it. कोई लेक्चर देने की जरूरत नहीं है वहाँ पे. He doesn't even have the capacity to understand, because that's why, right? So these are some of the problems I have with some feminists out here. And yeah, do whatever you want to do of it. I know this video is very triggering for all those, and as it should be, right? If it's triggering you, you really needed to hear this. Work on yourself. Peace.